बहुत बातें होती हैं, लेफ्ट आर्म पेसर है, उधर लेग स्पिनर है, सब ठीक है, लेकिन दिस इज अ वेरी डिफरेंट लुकिंग इंडिया साइड, एंड विद द डिफरेंस आई मीन द अप्रोच इज, भाई हमें टोटल चाहिए, हमें नाम के आगे टोटल नहीं चाहिए। वो जो वर्ड, एक डायलॉग है ना, मुझे सिर्फ एक वर्ड सुनाई देता है इंडिया, उसके नाम के आगे टोटल चाहिए। सो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस? England are going to face a much tougher. Mota personnel wise तो team वही है. India are going to face a much tougher England because finally जो चीज मैं सालों से कह रहा हूँ, T20 cricket is not about 50s. Now we're seeing Rohit Sharma admit it. सर आपको इतना टाइम लगा ये बात समझ में? अब अश्विन ट्वीट कर, ओ क्या दिमाग है भाई, तो कब से कह रहा है it's not about 50s. If 4 guys can get 35 runs at a strike rate of 190, you're going to get to 200. So इस टीम को खैर छोड़ो. I think I see the game very differently from Dravid and Rohit. I think I'm pretty cool in my own little bubble here. The point is now they're waking up, right? Exactly. The fear of failure, it's become such a cliche. The fear of failure finally is now being shed. Yes, Virat Kohli is having a terrible time, but the fear of failure has actually been shed. He's trying to do things. नहीं चल रहा है वो अलग बात है. But this is a very different Virat Kohli. I still feel बंदे से opening नहीं हो पाएगा. And when this क्या कहूँ, when the final chapter of this campaign is discussed, we'll go back to them. But the point is, he's trying to do something different, and we have to give him credit there, right? Again, it took a blinder. It took arguably, to my mind, the best knock from Rohit Sharma to put Australia off track, right? You're going to do that. England के साथ क्या है कि अब वो expect कर रहे हैं कि भाई ये तो जाग गया, ये क्या देगा हमने? ओ बेटा, अब अगर विराट ने, so now they're not worried, but they're not sure what kind of India to expect. और दूसरी बात है, हमने कल भी डिस्कस किया, परसों किया था, अब जसप्रीत बुमराह 22 में नहीं थे. बुमराह होता उस दिन, things would have been different. So England are actually far more worried about India than they would have been, like I said, 2 years ago, because the batting now has that cliched word intent, right? They know कि अब ये लोग अपने personal milestones के लिए नहीं खेलेंगे. ये सारा ये तो they're dancing out, they're skipping, they're playing ugly cricket. Indians don't play ugly cricket. Robin Singh was an ugly cricketer. These superstars, these are beautiful touch, classy players. When a Rohit Sharma starts to get down and dirty, it is just very brilliant to watch. अब सोचो कि विराट कोहली ugly cricket खेलेगा, you might get the most outstanding start of this campaign. And it's that uncertainty which I believe, I still say England are favorites because they know how to win. Sahil ने सही बात की, ये लोग ये नहीं सोच रहे कि conditions. They want to play, I'm putting England 60 and India 40. But कहां वो 20 रन पलट सकता है और इंडिया अचानक 60 is if Rohit and Virat and all the other guys. देखो पंत तो गंदा खेलता है, स्काई गंदा खेलता है. When I say गंदा, I mean just go out there. Unorthodox. Correct, and what did Rohit Sharma do? Rohit Sharma actually put fear in England's mind. यार ये बंदा तो 9 वर्ल्ड कप खेल चुका है, इससे पहले तो यार ये 35 से 50 मारता था, आज उसने 19 से मारा. What's changed? So finally, that walk the talk, selfless Rohit Sharma finally in the T20 format. I think he was brilliant in the one-day format. But now he's shown to England कि भाई हम वो टीम नहीं है जो आपने 10 विकेट से मारा. हम वो टीम नहीं है. हो सके हारे. It's cricket. Who knows? But I think it's the way that Rohit Sharma led that team with his batting. It's changed the dimension. And then there's the Bumrah factor. You might hit Arshdeep. You might hit Jadeja. You might hit Pandya. You're not going to be able to hit Bumrah. And I think it's on the shoulders of Bumrah once again, where tomorrow's match might be decided. I'll come to Bumrah first, but Taus bhai, ठीक है, हमने जो अभी तक अप्रोच देखी है, that has been a very impressive one for me at least. Okay, जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हुआ कि यार एक तरफ विराट का विकेट गिरा, अगले एंड पे रोहित शर्मा ने फिर धागा खोल दिया. बट इफ दिस हैपेंस इन अ सेमीफाइनल, क्या हम लोग या हमारा जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजमेंट से एक मैसेज आता है वो इतना जिगरे वाला आएगा एक सेमीफाइनल में भी कि वो बोला जाएगा रोहित जस्ट गो अहेड एंड डू व्हाट यू हैव बीन डूइंग फॉर 1.5 months? बॉस, आपको रन्स चाहिए ऑन बोर्ड. जब आप इंग्लैंड के सामने खेलते हो ना, तो यू नीड रन्स ऑन द बोर्ड. यू कांट हैव लाइक 150 एंड 140 एंड देन थिंक बुमराह विल बेल यू आउट विद दैट अमेजिंग 4 overs एंड देन जडेजा विल डू समथिंग, कुलदीप यादव विल रेस्क्यू यू. फेंक देंगे. 2 बड़े बैट्समैन है ना जो ऊपर, फिल सॉल्ट और कौन है वो, बटलर, वो खत्म ही कर देंगे यार. उनकी नीचे की बैटिंग ही नहीं आएगी भाई. सो दैट इज समथिंग. सी वो गंदा क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वो गंदा भी सेफ लगता है एकदम. जिमी भाई देखो, द वे बटलर प्लेज, द वे ही प्लेड इन द लास्ट गेम, यूएसए को कैसे खत्म किया. जो ग्राउंड ही छोटा लग रहा था, फिल सॉल्ट ग्राउंड ही छोटा लग रहा था, बाकी बैट्समैन, फिर उनका जोफ्रा आर्चर.
see it's not about I mean you need to have a set pattern यार, you need to have a set pattern. अगर रोहित वैसा खेल रहा है तो इनको भी खेलना पड़ेगा, which is too late now कि to look ugly for विराट कोहली. I mean वो उसके ईगो पर आ जाता है कि एक गलत शॉट हो गया, एक एज हो गया, एक मैं उल्टा खेल लिया, तो वो विराट कोहली के ईगो पे आता है, और वो ईगो को उसको बीट करना पड़ेगा विराट कोहली को यार. स्ट्रेट बैटेड शॉट्स नहीं आने वाले, और खास करके ये कंडीशन में नहीं आने वाला, बिकॉज यू हैव टू वेट फॉर द बॉल, पुल प्लेड दोस कट शॉट्स, वो आप रुक के फ्रंट फुट पे मारो. आपको ऐसा ही खेलना पड़ेगा क्योंकि विकेट स्लो इतनी है कि आपको आप टच गेम नहीं खेल सकते हो कि यार भाई एक अच्छा आया तो एक टच किया एक कड़क, क्योंकि सब हाथ का जितना भी मार लो सब कवर्स के हाथ में जा रहा है, एक्स्ट्रा कवर के हाथ में जा रहा है. आई मीन ही प्लेड सम ग्रेट ड्राइव द अदर डे यार, बट दे वर गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ द फील्डर्स. तो आपको वो अगली क्रिकेट आई विश आप पहले ही दिखा दिए होते. आई विश आपको पहले से ही समझ गया होना चाहिए था यार. T20 क्रिकेट इज नॉट जस्ट अबाउट playing those beautiful drives, but it's about playing those extraordinary, unorthodox, unconventional shots and with an aggressive mindset. देखिए इंडिया में खेलना, जब आप खेलते हो यार वो सब शॉट्स अच्छे दिखते, ग्राउंड बड़ा है, फील्डर थोड़ा दूर रहते हैं और निकल जाता है बॉल. यहाँ पर नहीं निकल रहा हो, यहाँ पर आउटफील्ड भी स्लो है, बॉल ऊपर जाएगी और वहां पर गिरेगा और वहीं पर ही रुक जाएगी. इंडिया में बॉल थोड़ा आगे चली जाती, कैरी हो जाती है बाउंड्री, तो यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा. तो वैसा गेम आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको हवा में खेलना पड़ेगा, आपको वो एंकरिंग रोल, ग्राफ्टिंग रोल, अनलेस इतना ही डेस्परेट सिचुएशन हो कि भाई आपके पास कोई बैटर्स है नहीं, वो तो सिचुएशन हो गया, सिचुएशनल हो गया, तो आप वो रिस्क नहीं उठा सकते हो कि भाई हमको एटलीस्ट पहुंचना 120 130. आपके पास जब जडेजा तक या अक्षर पटेल तक बैट्समैन हो तो आपको कंटिन्यूअस 30 रन बना के आप सोचो ना यार कितना बना लोगे यार. आई मीन यू हैव टू प्ले लाइक ऋषभ पंत. ऑब्वियसली इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट है बिकॉज उसने मतलब टाइम दिया है, सदियां महारत हासिल कर ली है. सूर्या ने सदियां दी है वो सब शॉट्स के लिए, एक दिन में तो नहीं है हो सकता डेवलप कर सकते. तो विराट को वही करना है जो भाई वो करते आया है. थोड़ा ऊपर से खेलना पड़ेगा पावर प्ले में, क्योंकि देखिए बॉल तो आपके पास आने नहीं वाला. आपको ज्यादा से ज्यादा पंच ऐसा करना पड़ेगा, कवर्स के ऊपर से जाए, पंच ऐसा करो कि स्क्वायर लेग के ऊपर से जाए, क्योंकि आपके पास मौका नहीं है, टाइम नहीं है. तो और सामने कौन है, जॉफरा आर्चर है, एक रिजुविनेट जॉफरा आर्चर who's going to bowl with a good pace. रीच चॉपरी लेफ्ट हैंडर अगेन, जो आपको लेफ्ट हैंडर का इनकमिंग प्रॉब्लम. क्रिस जॉर्डन साला मिक्स करके बॉल डालता है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे डाल रहा है, और खास करके ऑन दीज कंडीशंस वो जो उंगलियां फिराता है वेरी डिफिकल्ट. मोइन अली को तो फिर भी आप मार सकते हो, आदिल रशीद, क्योंकि वो एक ही पेज पर डालता है. आदिल रशीद को क्या करोगे, वही है. तो वो सब आपको प्लान स्ट्रेटेजाइज करना. आपको सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आप अगर बल्लेबाजी कर रहे हो तो 190 के नीचे देखना ही नहीं है. गेंदबाजी कर रहे हो तो आपको इनको 150 160 में निपटाना है, नहीं तो आप चेज नहीं कर पाओगे. सीधी बात है.